Yeah. So we have anybody have any difficulty in if else? Should we revise the things of if else? As such, we are not gonna deal with if else today. But yeah, at certain point we are gonna use the if else in our for loop. Should we revise if else? Anybody needs that we should discuss about if else? Anyone? Or should we directly move on with for loop? Should we directly move on with for loop? If you are not able to speak, just type in the chat. Well, if you cannot turn on your mic, if that is if else wala revise karna hai. Okay, is that the case with everyone? Because we are already late 20 minutes. Okay, just we can revise it in 10 to 15 minutes. That will be okay for now. Okay, I won't be discussing the syntax and all, but yeah, a brief intro what we saw. So let me just create another. Let's start with a fresh file. This is our session 5. Session 05.cpp. Okay, let me just create the boilerplate. Hash include IO string using namespace std int main, and in that what is the basic syntax of our if else? We just write the if keyword, and in that we have to write our condition, whatever condition we want to check. If that condition becomes true, we are going to enter into the curly braces, that is our scope. if का scope जो रहेगा उसके अंदर हम enter करेंगे, and whatever written in that if logic we will be gonna execute. For now, let's see. We are taking a number from the user. Let it be an integer, and let's name it as a number for now. Okay? And you are the one who is gonna enter that number. And what I wanted to do, I wanted to check that whether that number is an even number. For now, just move on with the basic logic. If the number is an even number, how do we check that number is an even number? We use the modulo sign, modulo 2, and if that is equals to 0, if the output of these equation, that is, if the number is number modulo 2, number modulo 2 means we will be dividing the number by 2, and whatever remainder we are getting, if that is equals to 0, that means the number is completely divisible by 2, and we can say that it's an even number, right? We can say that that number is an even number, and we will just see out the statement that yes, it's an even number. Okay, that's it. So this is the basic if logic. Okay, this is the basic if logic, and at the end we'll return, as this code is not returning anything, so we'll just do a return 0. Okay? And if I just run the code, let me just clear rest of the things. If I just run the code, and it will first ask me to enter any number. So let's suppose I enter 12. Okay? So it will be giving me the output as yes, it's an even number. Okay. So this was the kind of basic logic we saw of if. If let's suppose a number is not an even number, if it's a false, if it is an odd number, okay? So in case of else we can just say if this condition doesn't meet, if this condition becomes false, okay? If this condition is not true, in that case I wanted to execute my else wala logic. So what can I write into the else part? If the number is not even, so what could be the another chance? It could be odd. Yeah? So the number is odd. Okay? That's it. And at then you will have to use the semicolon. That's mandatory. And if I just run the code, you will be getting that. First we will have to enter any number. Let's say I enter this time 13. Okay? If I just press enter, you will see that you are getting the output as the number is an odd number. So this is the basic logic of if else. If I wanted to take this to a next level, actually we have solved a lot many problems that day, but for now I will be giving you this task. This task means you don't have to code it,
You just have to try to build the logic, try to visualize the things that how can we do it. Okay, so what is the thing here is, have you ever went to bank? Have you ever went to bank to deposit money? Anyone? Yes, you went to the bank. Okay. For those who have went to the bank, we will discuss the process. Let me just turn off the fan so that my voice is crystal clear to you all. So, if anybody from you who have went to the bank, if you want to deposit some amount to your bank or to someone else's bank, there is a receipt. You have to fill that. You have to write the account number, account holder's name. Then you have to write signature yours. Okay? Recipient names, phone number, blah blah blah. And also there is on the right hand side you can see a column where you have to enter कि आपने जो amount वहाँ पे आप deposit करने वाले हो in the form of cash, उसमें नोट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 500 के कितने नोट्स है, 10 के कितने नोट्स है, कॉइन्स कितने हैं, 200 के कितने नोट्स है, 100 के कितने नोट्स है. हैव यू एवर सॉ दैट? किसने देखा है वो? Yes, it's a common thing, right? It's a common thing. तो हमको क्या करना है अभी? Our problem is that what we wanted to do is कि with the help of if else logic, our problem statement is that कि मैं आपको एक amount दूंगा. I will give you certain amount. For now, let's assume it to be let's say it as 2,550. 2,550. आपको क्या करना है? आपको बताना है कि इसमें से मैक्सिमम 500 की नोट कितने बनेंगे, मैक्सिमम 100 की नोट कितने बनेंगे और मैक्सिमम 50 की नोट कितने बनेंगे. ठीक है, अभी हम अगर रॉ दिमाग लगाए अपना, तो कैन एनीबडी जस्ट इफ देयर इज समवन, लेट मी जस्ट सी द पीपल दैट वी हैव टुडे. Okay, Nimai, this is a question for you that let's suppose you have 2,550. अभी आपको इसमें कि आप 500 के कितने नोट निकलेंगे इसमें से? 2,550. आपने बोला 5 नोट, एग्जैक्टली राइट. 500 की 5 नोट निकलेगी. 100 के कितने नोट निकलेगी? फिर अगर 500 की 5 निकाले तो 100 के कितने निकलेगी? 0. एग्जैक्टली, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. 50 के कितने नोट निकलेगी? 1 निकलेगी. सो यू हैव टू प्रिंट नाउ. व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू प्रिंट कि भाई अगर तुमने 2,550 रुपए एंटर किए तो उसमें कि इन टोटल 500 की 5 नोट निकलेगी और 50 के 1 नोट निकलेगी. 100 के तो निकल नहीं, तो 0 तुम प्रिंट कर सकते हो, 100 के 0 नोट निकलेगी. ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है. तो हम इसको लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं. कैसे कि 50 के कितने निकलेगी, 100 के कितने निकलेगी, 500 के कितने निकलेगी, 200 के कितने निकलेगी, इन एन हायरार्की. सबसे पहले 500 की मैक्सिमम 500 की नोट देखो कितनी होगी, फिर 200 की, फिर 100 की, फिर 50 की, फिर 20 की, फिर 10 की, फिर 5, 2, 1 कॉइन के भी कर सकते हैं. बट अभी अपने पास इतना टाइम नहीं. अभी सिर्फ हम करने वाले हैं 500, 100, 50 विद द हेल्प ऑफ बेसिक इफ एल्स लॉजिक. ठीक, तो इंस्टेड ऑफ नंबर आई विल से यहाँ पर मैं मनी कर देता हूँ, क्योंकि मनी ज़्यादा यहाँ पर रिलेटेबल लगता है मेरे को, वेरिएबल इंटीजर. ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट मनी लिया. ठीक है, और यूज़र विल बी एंटरिंग दिस अमाउंट. ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए एक मैसेज भी कर देता हूँ, सी आउट प्लीज़ एंटर द अमाउंट. ठीक है, एंड दैट्स इट. ओके, एंड आई विल बी टेकिंग दैट अमाउंट एंड स्टोरिंग इट इनटू द मनी वेरिएबल. ठीक है, मैं अभी के लिए इफ वाला लॉजिक हटा देता हूँ. ठीक है, आई गेस यू आर फैमिलियर विद दैट एंड जस्ट लेट मी फुल स्क्रीन इट. ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू चेक कि 500 के नोट कितने हैं. ठीक है, 500 के नोट कितने. अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई विल जस्ट अज्यूम कि आपने निमाई ने यहाँ पर 2,550 रुपये एंटर किए हैं. ठीक है, उसके बाद मुझे चेक करना कि 2,550 में से 500 के नोट कितने बनेंगे. ठीक है, तो आई कैन जस्ट से इफ लेट्स सपोज इफ जो भी आपने मनी एंटर की है, इफ मनी मॉड्यूलो
मॉड्यूलो करना पड़ेगा या फिर डिवाइड, मॉड्यूलो डिवाइड. हाँ, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. I can just say that if money is greater than 0 and उसके केस में money divided by 500, ठीक है. और इसका जो भी आउटपुट आएगा that I can store into a new variable. Let's name it as int notes 500. क्योंकि ऐसा मैंने यहाँ पर 500 नोट्स क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक नया वेरिएबल बना है जिसके अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ क्या 500 के नोट्स, ठीक है. तो मैं इसको इस तरीके से नहीं कर सकता 500 नोट्स, बिकॉज आई कैनॉट स्टार्ट माई वेरिएबल नेम with a number. I will always have to start with a alphabet or a letter, ठीक है ना, or like or a dollar sign. That is also in case of your naming an object, ठीक है. तो here we will be giving it as a name as notes 500, ठीक है. सही है अभी के लिए. तो मैं को क्या करना है कि फर्स्ट आई विल बी चेकिंग दैट इफ माई मनी इज ग्रेटर देन 0. ऑफकोर्स अगर 0 रहेगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता. I have just seen this problem. I haven't solved it. So this is also my first attempt to solve it, but we will see it together. तो अगर मैं क्या कर रहा, अगर मेरा जो मनी है, मेरा जो अमाउंट है, अगर वो 0 से ज़्यादा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंडीशन में चेक करूँगा कि अगर वो सबसे पहले चेक करूँगा कि जितना भी ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, जो मेरा मनी है, जो भी मेरा अमाउंट है 2550, उसको अगर मैं 500 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट आएगा. कोई डिवाइड करके बताएगा. अगर 500 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल आई बी गेटिंग. एनीवन 2550 को 500 से डिवाइड करो ना यार, कितना मिलेगा? 5 मिलेगा कि कितना मिलेगा गाइस? 5.1 मिलेगा, राइट. बट यहाँ पर हम उसको इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, तो पॉइंट में स्टोर नहीं होगा. जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगा ना वही स्टोर होगा. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद दिस. जैसे कैसा रहता है, अगर मैं लेट सपोज मैं एक इंट स्टोर कर रहा हूँ, इंट नंबर. अगर मैंने इंट से उसको डिक्लेयर किया, इंटीजर से डिक्लेयर किया, और इसके अंदर मैं 5.5 स्टोर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 5.5 स्टोर नहीं होगा. अगर मैं इसको प्रिंट करूँ अभी का, आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द कोड. एंड मैं क्या कर रहा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इंटीजर नंबर के अंदर 5.5 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है. एंड मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या स्टोर है. तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करके बताऊँ आपको, तो यू कैन सी दैट उसके अंदर सिर्फ इट विल बी जस्ट 5. इट विल रिमूव 0.5 क्योंकि वो इंटीजर है. उसका मतलब क्या, इंटीजर का मतलब क्या कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं करेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स द थिंग. अगर आपको पॉइंट में स्टोर करना है तो यू कैन यूज फ्लोट. एट दैट प्लेस यू कैन यूज फ्लोट, ठीक है. अगर मैं इसको अभी प्रिंट कर रहा हूँ तो इट विल स्टोर 5.5. सो दैट्स द केस. बट दिस इज द केस. सो व्हाट एम आई डूइंग इज, इसको अभी अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जस्ट अनकमेंट द कोड. तो मैंने क्या किया, इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन 0, तो मैंने क्या किया, अगर इसको डिवाइड किया, मनी जो भी मेरा अमाउंट रहेगा उसको 500 से डिवाइड किया, तो वो कितना देगा मुझे रिटर्न में? अभी भी अगर किसको कन्फ्यूजन है तो मैं करके बताता हूँ यार. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, नोट्स 500 के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, मनी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है. एंड लेट्स सी क्या हमको आउटपुट आता है. वी ऑल्सो डोंट नो कि क्या आउटपुट आएगा. लेट्स सी. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इट विल आस्क मी टू प्लीज एंटर द अमाउंट. तो मैं 2550 रुपये यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ. तो मैंने उसको अभी तक प्रिंट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके अंदर स्टोर किया. आई विल हैव टू प्रिंट इट. ओके, इफ आई जस्ट रीरन द कोड, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट. If I just enter the amount again, 2550. Are you able to see what we are getting, guys?
पट पट रिप्लाई दिया करो, येस और नो, नो तो नो, येस तो येस, सिर्फ रिप्लाई जल्दी होना चाहिए, टाइम बहुत अपने पास कम है। तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, तो अभी ये लॉजिक तो क्लियर है कि ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है भाई, दिस कोड इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस, दिस इज जस्ट रिटर्निंग मी वर्ड 5, और मैं उसको किस में स्टोर कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर आई वांटेड टू होल्ड इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नोट्स 500 इज इक्वल टू मनी डिवाइडेड बाय 500, दैट्स इट, दैट्स द थिंग। तो इसके अंदर मुझे 5 स्टोर होके आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, अभी जो मेरी एक्चुअल मनी है ना उससे ये माइनस भी करना है, क्योंकि मैंने उससे 500 के नोट निकाले, मतलब मैंने 2500 रुपये निकाल लिए। तो एक्चुअल मनी मतलब 2550 रुपये रहेगा, उसमें से मेरे को 2500 रुपये माइनस करना है। अगर हाउ कैन आई जस्ट डू दैट, आई कैन जस्ट डू इट हियर ओनली। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मनी वाले वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा, मनी इज इक्वल्स टू मनी माइनस नोट्स 500 क्या करेगा, मेरे को 5 रिटर्न करेगा, इंटू 5 इंटू 500 करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पर, व्हाट दिस थिंग इज डूइंग, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा मनी है एक्चुअल में, मनी के वेरिएबल के अंदर जो भी अमाउंट शो है, ये 5550, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखे कि उसके अंदर 500 के नोट कितने हैं, 5 नोट है, तो मैंने स्टोर कर दिए नोट्स 500 के अंदर, ठीक है। अभी मेरे को वो मनी में से 500 के नोट निकालने भी पड़ेंगे ना। अभी अगर मैंने इसमें से 500 के 5 नोट निकाल दिए तो मेरे पास कितना बचा, सिर्फ बचा मेरे पास 50 रुपये, ठीक है। मैंने 2500 रुपये निकाल दिया, मेरे पास सिर्फ बचा 50 रुपये। तो मुझे वो सब्सट्रैक्ट भी तो करने होंगे 2500 मेरे ओरिजिनल मनी में से। तो इसलिए मैंने क्या किया, मनी इज इक्वल्स टू मनी माइनस नोट्स 500। नोट्स 500 में भी 5 स्टोर है, यहाँ पर 5 स्टोर है, वी हैव सीन दिस थिंग। तो मैंने 5 इंटू 500 किया, ये हो गया 2500। तो मेरे मनी में से क्या हो जाएगा, 2500 रुपये माइनस हो गए। तो कितना होगा मेरे पास, अभी मनी में बचेगा 50 रुपये, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा इफ़ का लॉजिक, गेटिंग द पॉइंट। अभी मैं एक और इफ़ लिखूंगा, एक और इफ़ में मैं क्या लिखूंगा अभी, कि अगर फिर से चेक करूंगा, इफ़ माई मनी इज ग्रेटर देन, अगेन आई विल हैव टू चेक, इफ माई मनी इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक फॉर 100 नाउ, ठीक है ना। मैं अभी 100 के लिए चेक करता हूँ। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे हमने नोट्स 500 को स्टोर करने के लिए किया था, वैसे ही मैं नोट्स 100 को स्टोर करने के लिए करता हूँ। तो नोट्स 100, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी हम नोट्स 100 को देखेंगे। सिमिलरली जैसे हमने नोट 500 को देखा, वैसे हम नोट 100 को देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी मनी है उसको डिवाइड करेंगे 100 से। अभी मनी कितनी है मेरे पास बच्चे हुए, कोई बताएगा, एनीवन? 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये, राइट। अगर मैं 50 रुपये को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे इंटीजर में क्या वैल्यू मिलेगी, कैन एनीबॉडी टेल? 0 पॉइंट मिलेगी समथिंग। डू यू गाइज अग्री विथ मी, यस और नो? 0 मिलेगी। ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो वो 0 किस में स्टोर होगा, नोट्स 100 में। तो वो 0 किस में स्टोर होगा, नोट्स 100 में। दैट मीन्स टोटल 100 नोट्स एट 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 100 के भी नोट्स मिल गए। अभी मुझे लास्ट में क्या चेक करना है, कितने की नोट्स चेक करनी है? गाइस हेलो, 500 की कर दें, 100 की कर दें, 50 की करनी है, तो मुझे 50 का भी वेरिएबल बनाना होगा। तो आई विल जस्ट क्रिएट अनदर वेरिएबल नोट्स 50, ठीक है। And here I can just do that, notes 50, similar logic, कुछ भी rocket science नहीं। notes 50 is equals to money divided by 50, that's it। और यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, ये सिमिलर चीज़ हमको करनी होगी, यहाँ पर भी मनी को अपडेट करना होगा। अगर इन केस मुझे नहीं पता ना कि 100 की नोट्स है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक और अपडेट कर दूँगा, ठीक है। एंड आई कैन जस्ट डू इट हियर। यहाँ पर भी मुझे सेम चीज़ करनी होगी। क्या करनी होगी, मनी को अपडेट करना होगा, जो भी मेरे को रिटर्न में मिले। यहाँ पर सिर्फ मेरे को नोट्स 100 करना होगा, ठीक है। नोट्स 100 इंटू 100, और यहाँ पर भी नोट्स 50 मैं अपडेट कर रहा हूँ ना वैल्यू को, नोट्स 50 इंटू 50, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। तो सिमिलर लॉजिक है, इफ इसमें भी सेम लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, दैट्स इट। आई कैन जस्ट डू वन थिंग। अभी अगर लेट सपोज मैंने सारे में तो इफ़ में लगा दिया, ठीक है। अभी मैं एक
अगर मेरे पास इससे भी कुछ अमाउंट बच जाता है, लेट सपोज मैंने 5,550 की जगह 5,590 रुपये किया होता, ठीक है, तो मेरे को 50 की एक नोट तो मिल जाती, बट 40 रुपये और बचते, ठीक है। तो उस वाले केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को वो 40 रुपये बताने कि कितने पैसे बच गए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई कैन जस्ट डू दैट, आई कैन जस्ट प्रिंट द रेस्ट ऑफ द मनी। इसमें क्या रहेगा, जो बचा कुछ अमाउंट रहेगा ना वो रहेगा मनी के अंदर, तो आई कैन जस्ट प्रिंट इट, दैट वोंट बी, आई वोंट हैव टू as such create a separate logic for it, so I can just see out whatever I have got. I can just say 500 के नोट्स, 500 के नोट्स कितने हैं भाई, 500 के नोट्स प्रिंट कर दो, 500 नोट्स। उसके बाद मुझे प्रिंट करने हैं 100 के नोट्स, ठीक है, और उसके बाद मुझे प्रिंट करने हैं 50 के नोट्स, एंड उसके बाद बचा कुचा जो रहा है रिमेनिंग वो भी कर दूंगा, रिमेनिंग नोट्स। और रिमेनिंग नोट्स के अंदर मैं मनी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इधर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, इसको तुम हटा दो, नॉट दिस। मनी के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार मैं स्टेटमेंट को चेक कर देता हूँ। और आपका भी कोड अगर ऐसा जाता है और आपको दिक्कत होती है तो यू कैन जस्ट चेंज द व्यू, आप वर्ड रैप कर दो तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा दूर खींचने की ज़रूरत नहीं। तो सी आउट किया मैंने 500 के नोट्स, और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ तो मेरे को 500 के नोट्स आ जाएगा। यहाँ पर भी स्पेस देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस, 100 के नोट्स मेरे को नोट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद 550 के नोट्स, और मैंने 50 के नोट कर दिए। फिर रिमेनिंग नोट्स, या फिर मैं रिमेनिंग अमाउंट कह सकता हूँ नोट्स से अलावा, रिमेनिंग अमाउंट, मुझे कुछ जितने भी चिल्लर है वो भी प्रिंट कर दो भाई। I hope this should give us the right answer. Let's see if it is giving us or not. Let's do it. Please enter the amount 2,550 rupees we are entering. तो 500 के 5 नोट है, 100 के 0 नोट्स है, 50 का 1 नोट है, रिमेनिंग अमाउंट इज 0। सही है भाई, सही जा रहा है लॉजिक। बस इसके बाद मुझे अगर मैं एंडल डाल दूँ तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हर एक के बाद मैं एंडल मतलब नेक्स्ट लाइन डालता हूँ, दैट्स इट, कि वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, दैट्स इट। इसके बाद भी मुझे एंडल डालना है, ये सिर्फ रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है। इसके बाद भी एक एंडल डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी सब तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया लॉजिक चल रहा है अपना। तो एक बार फिर से कोड रन करता हूँ। नाउ यू एनीवन लाइक जस्ट वैष्णवी, जस्ट गिव मी एन अमाउंट, एनी अमाउंट। $7,500, और थोड़ा सा उसको चिल्लर में मतलब थोड़ा सा और ऐड करो, 7,540. Let's check it for this, 7,540। तो 500 के 15 नोट्स बनेंगे, 100 के 0 बनेंगे, 50 के भी 0 बनेंगे, 100 के 0 बनेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट इज 40। किसी को कुछ भी दिक्कत इस कोड में, कुछ भी दिक्कत? एनीवन? इजी था, आसान है। इस तरीके से आप अपने खुद के लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मैंने आपके सामने बनाया। अभी समझे कि अप्रोच कैसे करना प्रॉब्लम को, कि अगर लाइक ऐसे मेरे को पता नहीं था कि इसको 0 से स्टार्ट करना है, बस वी जस्ट स्टार्टेड एंड वी जस्ट वेंट विद द फ्लो। जैसे जैसे होते गए हम जस्ट चलते गए। ऐसे मैंने कुछ स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिखा गया कि हमको ये नोट्स लगेंगे, जैसे जैसे लगती गई हमने चीज़ें इंक्लूड करना चालू करते गए। गेटिंग द पॉइंट? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? कोई दिक्कत थी क्या? मतलब कोई दिक्कत नहीं थी ना? किस जगह पर लगा कि ये नहीं समझा? किसी को भी शुड आई लाइक ऑलवेज इट इज नॉट गुड टू कॉल द नेम्स। रिया समझा? ओके, देन हु इज देयर हु डोंट स्पीक? भूषण भाई बोल ले यार, तो यार मैं तेरे को आज फिर परेशान करूंगा।
तू अगर नहीं बोलेगा ना, नहीं तूने बोलना चाहिए आज की क्लास में, तूने बोलना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को परेशान करूँगा भाई आज। सर नहीं बोलना, सर नहीं बोलना। ठीक है, तो हम मूव करें फॉर लूप के साथ, फॉर लूप के साथ मूव करें। ये क्लियर है, इफ का क्लियर है फंडा। ठीक है, मैं फिर एक तुमको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, देखो अपने कॉलेज लग गए एंड दिक्कतें आएंगी अभी। एक सबको ऑनेस्टली बोलते हो कि तुमको थोड़ा इम्बैलेंस लगेगा कि नहीं टाइम बच रहा है, घर पे कोई कोई पहुँच रहा है 7 बजे 6 बजे। बट यार देखो, अगर तुमको बड़ा कुछ फोड़ना है ना, तो सीरियसली विल हैव टू compromise with a lot many things. You have to compromise with your sleep, you will have to compromise with your comfort zone, because that's how these things are. I'm pretty sure that कि अभी आने वाले टाइम में आप में से बहुत जन नहीं लड़ रहे होगे, मतलब 10 जन तो गायब होने ही होने एट मैक्स। बट वही कहना है यार एट द एंड कि रहो, मतलब इस टाइम पर अगर तुमने इस चीज़ को पकड़ लिया ना भाई, मज़ा आ जाएगा, मतलब सेकंड थर्ड ईयर तक तो मज़ा आ जाएगा तुम्हारा। बट इसको अभी पकड़ो, डीएसए को जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप्स होगी ना उतना, मतलब मैं तो मेरा बेस्ट दूंगा कि आपको हर एक चीज़ फोड़ के समझाओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके समझो। ऐसा मेरे एंड से नहीं रहेगा कि ये चीज़ मैंने फास्ट ले ली और ये चीज़ नहीं समझाई। अगर 6 के 12 महीने लगने दो, बट करूँगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूँगा। यहाँ इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट वही आपसे क्या चाहिए कि एक ही चीज़ चाहिए कि समवेयर देयर विल बी इम्बैलेंस। अभी कॉलेज लग रहे हैं, कॉलेज लग गए, मेरा भी इम्बैलेंस होता है, बट अब हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं वो हम खुद पर ही है। मैं आपको कुछ बोलूँगा कि ऐसा करो वैसा करो, दैट वोंट सूट योर स्केड्यूल। ठीक है ना, सबका स्केड्यूल अलग अलग है। तो एटलीस्ट डीएसए के लिए आपको 2 घंटे क्लास के लिए तो निकालनी है। रिकॉर्डिंग पे जाना नहीं है, रिकॉर्डिंग पे नहीं मजा आएगी। रिकॉर्डिंग तुमको लगेगा कि क्या ही फालतू इंसान पढ़ा रहा है, मतलब वो रिकॉर्डिंग मैं ही खुद की देखता हूँ ना, रिकॉर्डिंग तुम नहीं पसंद आती मुझे। और जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ देन आई लाइक इट, क्योंकि लाइव में यार अलग मज़ा है। वो रिकॉर्डिंग में तुम नहीं पढ़, अगर 2-2.5 तुम अगर देखोगे रिकॉर्डिंग तो 2.5 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग जा रही है भाई। कैसे वो 2.5 घंटा देख के मैं मतलब नहीं उसको स्टार्ट करूँगा ना, क्यों करूँगा मैं, 2.5 घंटे तक पहुँचूंगा ही नहीं भाई। जब हम क्लास में रहते हैं तो किसी को पता चलता है कि टाइम कि हम 2.5 घंटा बैठे हैं, ऐसा फील होता है क्या तुमको कि नहीं यार? तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइव क्लासेस, दैट इज़ द ब्यूटी। तो वही करो कि डेडिकेटेडली करना है। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाला टाइम क्रूशियल रहने वाला है। हमारी छुट्टियाँ थी तो हमको इजीली हम कर लेते थे अटेंड, बट अभी कॉलेज लग रहे हैं तो इट कैन हैपन, इट विल हैपन दैट यू विल नॉट एबल टू स्पेयर टाइम। प्रोजेक्ट्स आएंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, वाइवा आएंगे, यूटी आएंगी। बट अगर तुम सब कुछ बैलेंस रखते हो, इस चीज़ को अनबैलेंस मत करो, बस इतना ही कहना है। आने वाले 6 महीने तक अगर तुमने ये 6 महीने तक इसको आदत डाल दी, एटलीस्ट 3 महीने तक करो, फिर तो आपको खुद ही लग जाएगी इसकी आदत। फिर 3 महीने तक हमारा एटलीस्ट आपको, आप लीड कोड वगैरह पे प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे आपको, तो फिर उसके आगे की जर्नी आपकी खुद की, तुमको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी यार। मैं तो मेरे पास जितना उतना सभी दे दूंगा और तुमको लोग लाऊंगा मैं, मेरे जो पहचान में है, NITs में, IITs में, जो भी मेरे पहचान के बंदे हैं। इवन वी विल ट्राई टू गेट दी people from the industry also, we will pay for them, no like पैसा है अभी तुम्हारे से आ रहा पैसा, वो पैसा उनको पे कर देंगे, एक मंथ के गिफ्ट हम स्किप कर देंगे। बट तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसरी चीज़ें लगेंगी, जिस टाइम पर जो मोटिवेशन चाहिए कि हम इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, वो हम ट्राई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओनली थिंग वी वांट फ्रॉम यू इज कंसिस्टेंसी, दैट्स इट, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी रखी, बाकी सब हम पे छोड़ दो। तो फॉर लूप का शुरू करते हैं। फॉर लूप की बहुत इजी कहानी है, स्टार्टिंग में सबको इजी लगती है, बट प्रॉब्लम्स भाई ऐसे बनते हैं ना इसमें कि क्या ही बताओ, लाजवाब प्रॉब्लम्स बनते हैं। मेरे को लगता था कि मेरे को फॉर लूप पूरा आता था, ऐसा लगता था मेरे को, पता है क्या, 2-3 दिन पहले तक लगता था कि भाई फॉर लूप पूरा आता है। बट मैंने सोचा कि अब ये डीएसए की सीरीज से एडवांस कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो चलिए नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं चीज़ों को। तो मैं ऐसे एक प्रॉब्लम्स करता गया, जैसे खोदता गया ना अंदर, ऐसे प्रॉब्लम्स निकलने आए ना, मज़ा आ जाएगा आपको सबको। बस पहला प्रॉब्लम समझना चाहिए, दूसरा प्रॉब्लम समझना चाहिए, तीसरा प्रॉब्लम समझना चाहिए, चौथा प्रॉब्लम तो आप खुद ही कर लोगे। और हाँ, पहले 3 प्रॉब्लम तक कृपया करके कोई भी पैरेलली कोड मत करिए। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। उसे पेन ओपन करने दो यार। यहाँ पर ही समझेंगे चीज़ों को।
मेरे को बोर्ड ओपन करने का मन नहीं हो रहा. इट शुड राइट. या इट्स राइटिंग. तो नहीं चल रहा है. चल रहा है. ठीक है, तो मैं का नाम ले लेता हूँ. मेरे को एक वॉलंटियर लगेगा. हाँ, अभी आज के लिए तो पूरे दिन के लिए मैं को ही पकड़ूंगा. कौन है? वेयर इज ही? भूषण. भूषण, तुमको अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो समझ में आ गया क्या? सर मत बोल, सर मत बोला. मैं तेरे को अंकल बोलूँगा नहीं तो. ठीक है, सर मत बोल. हाँ, नहीं चलेगा. मेरे को नहीं चलेगा. अरे कैसे हो यार तुम लोग? नहीं पसंद तो नहीं पसंद यार, मत बोला करो. ठीक है, तो माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक जस्ट टेल मी द प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम. सी आउट. I wanted to print your name. What should I write? ठीक है, इससे आपका नाम प्रिंट होकर आ जाएगा. ठीक है, अभी अगर मेरे को आपका नाम 2 बार प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? अरे फॉर लूप आपको आता है पहले से? अभी लेट्स सपोज आप 2 बार के लिए फॉर लूप करोगे क्या? मेरे को सिर्फ दो बार प्रिंट कर और एक बार सेम लाइन का कोड लिख दो ना यार. मतलब दो बारी के लिए फॉर लूप नहीं लगाते. 2 बारी के तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं. ठीक है ना भूषण जी? ठीक है, अभी लेट सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को आपका एक वर्ड प्रिंट करना है. मतलब पहले बी, उसके बाद एच, उसके बाद यू, उसके बाद एस, उसके बाद एच, उसके बाद ए, उसके बाद एन. कैसे करूँगा मैं? ऐसे ही करेंगे क्या? सी आउट ऐसे करूँ? होगा ना प्रिंट इससे? क्या है? ऐसा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अपन. राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर मेरे को पूरा नाम दिया हुआ है पहले से, ठीक है, भूषण का पूरा नाम दिया हुआ है ऑलरेडी. आई हैव गिवन द नेम. ठीक है ना, आई हैव बीन ऑलरेडी गिवन द नेम. मेरे को एक नेम में भूषण असाइन है और मेरे को उसको लेट से 10 बार प्रिंट करना है, 100 बार प्रिंट करना है, फिर उसका एक लेटर 100 बार प्रिंट करना है. ठीक है, तो हम सी आउट से या फिर इस तरीके से उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे. गेटिंग द पॉइंट? इसको हम भले ही 100 बार प्रिंट कर सकते हैं, बट अगर 1000 बार हो गया, 1 लाख बार हो गया, 2 लाख बार हो गया, इसको हम कॉपी पेस्ट से या फिर डायरेक्टली कोडिंग से पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आप बोलोगे नेम का तो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट अगर मेरे को इंडिविजुअल लेटर प्रिंट करना है, ठीक है, मेरे को लेट सपोज बी 100 बार प्रिंट करना है, उसके बाद एच 100 बार प्रिंट करना है, उसके बाद यू 100 बार प्रिंट करना है, एंड लेट सपोज मेरे को एस को स्किप करना है, उसको एस को सिर्फ 50 बार स्किप करना है, 50 बार प्रिंट करना है, उसके बाद एच को करना है, उसके बाद ए को करना है, उसके बाद एन को करना है. तो जब ऐसे केसेस आते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्योरली और लूप कि आपको एक ही चीज़ कंसिस्टेंटली करनी है. एट दैट टाइम ओनली यूज द फॉर लूप, वेयर यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव हर्ड कि आपको एक चीज़ जब बार बार करनी रहते. ये हालांकि ट्रू है, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ फॉल्स, बट इट इज़ नॉट ओनली ट्रू. ये पूरा का पूरा सच नहीं है. आपको ऐसे भी लॉजिक्स आते हैं कि कहीं पे आपको ब्रेक करना पड़ता है. यू हैव टू एग्जिट द लूप एट सर्टन पॉइंट एंड यू अगेन हैव टू एंटर द लूप. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द केसेस कि लेट सपोज इसको आप इमेजिन करो, मैंने कहा ना आपको बी एच यू प्रिंट करना है, उसके बाद एस पे आपको स्किप करना है. कितने पे स्किप करना है? आपने बी एच यू 100 बार प्रिंट कर दिया. एस को आपको 50 बार स्किप करना है, 50 बार प्रिंट करना है. ठीक है,
फिर एच को प्रिंट करना है, फिर ए को प्रिंट करना है, उसके बाद एन को स्किप कर देना है। तो ऐसे केसेस आते हैं ना जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजिक भी कह दो, कंटिन्यूस लूप भी कह दो, at this point the logic is, you know, that the logic is repeating, ठीक है, somewhere the logic is repeating. If you are skipping the things 50 times, at the end the logic is repeating ना, 50 times उसको skip कर रहे हो, ठीक है, 50 times उसको sprint कर रहे हो, तो logic repeat हो रहा है but not continuously. It's a discrete logic which has been repeating. So it's not always right to say that at certain point when I just wanted to continuously loop a thing and print the same thing again and again. I wanted to do the same task again and again. At that point only I will be gonna using the for loop. Not at all, not only true. यही ट्रू नहीं है, पूरा का पूरा सच ये नहीं है. आप अगर कुछ अलग भी ऐसा लॉजिक रहे तो उस टाइम पे भी आप फॉर लूप यूज़ करते हो, जो कि हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हम फॉर लूप DSM के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना. ऐसे आपको सिंपल लॉजिक नहीं आता कि आप BHUSHN प्रिंट करिए एक 100 बार, नॉट लाइक दैट. डिस्क्रीट लॉजिक में बहुत ज़्यादा फॉर लूप का यूज़ होता है एंड वी विल बी सीइंग इट हाउ मतलब कैसे होता है. ये तो बेसिक काम क्या है अभी के लिए ये समझ लो कि जब भी आपको कुछ रिपीटेटिव टास्क करना हो, whenever you wanted to perform a repetitive task, ठीक है ना, at that time you prefer to use for loop, ठीक है ना. अभी for loop लूपिंग के लिए तो कई सारे लूप्स है, एक for loop भी है, ठीक है ना, एक while loop भी है, एक do while loop भी है, ठीक है, 3 लूप है आपके पास, ठीक है. और कोई लूप है क्या, किसको पता है? और कोई इससे और कोई लूप रहता है क्या? अगर पता हो तो मुझे बता देना, ठीक है. तो कई सारे लूप्स हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, ठीक है, कौन सा इजी टू यूज़ है, कौन सा कब यूज़ करना है, ठीक है ना. हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले फॉर लूप, कई जगह पे वाइल लूप भी काम में आ जाता है. ये हालांकि नहीं काम में आता है, टू बी ऑनेस्ट. इसको हम रियर ऑफ द रियर केस में यूज़ करने वाले, रियरेस्ट केस में यूज़ करने वाले, इसको समझ लेंगे कैसे काम होता है, बट रियरेस्ट केस में इसको हम यूज़ करने वाले. ज़्यादातर फॉर लूप पे हमारा ध्यान रहेगा, वाइल लूप पे भी करेंगे, और डू वाइल लूप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है. तो डेट वॉज अ बेसिक काइंड ऑफ थिंग. अभी हम देखते सिंटैक्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिंटैक्स देखते किसका, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले फॉर लूप के साथ, उसके बाद देखेंगे हम वाइल लूप की कहानी. तो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे चालू होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है फॉर कीवर्ड, देन यू हैव टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन इटरेटर, ठीक है. यू हैव टू डिक्लेयर and initialize an iterator. Not compulsory, you have to initialize it over here only. You can even initialize it loop के बाहर, outside the loop. You can initialize it outside the loop. कभी कभी मेरी इंग्लिश में वर्ड्स नहीं आते तो ऐसा मैं समझो कि मैं भूल गया, मैं याद करता रहता हूँ कि कौन सा वर्ड यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है. तो you can initialize the iterator outside the for loop also. We'll see that, we will explore it. तो सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है इटरेटर, जो कि आपके कंडीशन के थ्रू लूप करता है, ठीक है ना. तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक अभी के लिए आइटरेटर, जो इटरेटर को हम आई कहते हैं, उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एंड आई. ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन. अभी मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया, इज इक्वल्स टू 1. अभी मैंने किया उसको इनिशियलाइज, मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर की 1, ठीक है. ये मेरी क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है ना. इनिशियल वैल्यू इसलिए मैंने उसको आई नाम नहीं दिया, इसको ये आइटरेट करता है बेसिकली. आइटरेट मतलब, आइटरेट का कोई मीनिंग बताया क्या मेरे को हिंदी में? आइटरेट करना मतलब क्या होता है? ओके.
वीडियो को ऑफ ही कर देता हूँ ना फिर। अभी क्लियर है क्या आवाज़? हेलो, sorry if there was a problem, but let's see if the thing goes right or not. If there is any lag, just let me know, ठीक है? तो इतना आया था कि आपको आवाज़ कि हम फॉर लूप का सिंटैक्स डिस्कस कर रहे थे। वी डिस्कसिंग अबाउट द फॉर लूप सिंटैक्स। ये इतना क्लियर था ना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक आइटरेटर रहता है जो आइटरेट करता है, जो इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ रहती हैं उसके थ्रू लूप करता है, ठीक है ना? कितने टाइम्स लूप करना है उसको हम इनिशियल वैल्यू देते हैं 1, उसको हम आइटरेटर कह सकते हैं या फिर और कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। उसको काउंटर कह सकते हैं, कई जगह पे उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अभी के लिए हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा नहीं कि आई देना अच्छा नाम है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आई को प्रेफर करते हैं। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 1, मैंने उसको इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर भी किया एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना? और उसमें वैल्यू डाल दी मैंने 1। उसके बाद जो सेकंड, इसके अंदर टोटल फॉर लूप के अंदर आपके पास 3 कंडीशंस रहती, सिर्फ 3 कंडीशंस रहती है। इसमें मैंने पहली कंडीशन डाल दी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन आपको वो देनी होती है कि आपका लूप कब तक चलना चाहिए, ठीक है? ये जो आपका लूप है ये एक कंटिन्यूस फ्लो में चलेगा, ठीक है? इट विल बी इन अ कंटिन्यूस फ्लो। तो देयर शुड बी सम पॉइंट वेयर यू वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम दिस लूप, ठीक है ना? तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई दैट कंडीशन कि कब एग्जिट होना है, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट। तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट कंडीशन। तो मैंने स्टार्टिंग बोल दिया कि फर्स्ट से शुरू करो, एंड कब करना है आई कैन जस्ट सेड दैट कि मेरे को एंड करना है ये 10 के बाद, ठीक है? तो जब भी मेरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जब भी मेरी वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 के बाद उसको एंड कर देना, ठीक है? अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लेस देन कहता था, जब भी मेरी आई की वैल्यू 10 से कम हो, 10 से ज़्यादा हो तब एग्जिट कर देना, ठीक है ना? 10 से जब भी मेरी आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, 1 से चालू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब भी 10 हुई 10 से एग्जिट कर देना। 10 की वैल्यू को प्रिंट मत करना, या फिर 10th वाले लूप को रन मत करना। अगर मैं इक्वल्स टू करूँ तो 10th वाले लूप को भी रन करेगा। ये यहाँ पर मेजरली कन्फ्यूजन होता है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं मेरे टाइम पर इसमें बहुत कंफ्यूज होता था, अभी मैं आपको क्लियर करूँगा। अभी के लिए इतना समझ लो, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब ये 10 तक जाएगा लूप, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है, देखो हमने इनिशियलाइज कर दिया, पहला चीज़ उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है? हमने क्या किया, उसको एंडिंग पॉइंट भी दे दिया कि इस पॉइंट पर एग्जिट होते जाना। बट उसको बढ़ना तो चाहिए, एक तो बढ़ना ही चाहिए या फिर घटना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन तो होना चाहिए ना, नहीं तो ये कंटिन्यूस इनफाइनाइट लूप में जाएगा। बट वो अपडेट होना चाहिए कि हमको ये एक लूप होने के बाद ये वैल्यू को अपडेट करो, ठीक है ना? नहीं तो 1 को स्टार्ट कर दिया और 10 से कम, बट वो 10 तक जाएगा कैसे? उसको 10 तक पहुंचाना तो ना होगा ना, हमको उसको धक्का तो देना होगा। तो यहाँ पर हम तीसरी वाली कंडीशन में अपडेशन का काम करते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेट्स सपोज में आई प्लस प्लस कर, तो आई प्लस प्लस क्या करता है, आई में एक वैल्यू को ऐड करता है। पहले मेरा 1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और ये इसका स्कोप हो गया, ठीक है? इसके अंदर आप जो भी करोगे काम वो आपका फॉर लूप रन करेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ भूषण के नाम को 10 टाइम्स, ठीक है? और हर एक जब भी भूषण का नाम प्रिंट होगा उसके बाद आई कैन जस्ट एंडल भी दे सकता हूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट लाइन में उसका नाम प्रिंट होते जाए, या फिर मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, ठीक है ना? कि जैसे ही भूषण का नाम प्रिंट हो मेरे को एक स्पेस चाहिए, उसके बाद एक एम्प्टी स्पेस मैंने दे दी, दैट्स इट। इवन यू कैन गिव एन एंडल ऑल्सो आफ्टर दैट विल जस्ट प्रिंट योर नेम इनटू द नेक्स्ट लाइन, दैट्स इट, ठीक है ना? तो अभी हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं इस वाले डायरेक्टली पीसी के, बट इसमें कई सारी चीज़ें जो कि आपको पता रहनी चाहिए, जो कि एज अ बिगिनर कोई डिस्कस नहीं करता बिगिनर के साथ, टीचर्स लोग तो भी सीखने नहीं करते, बट आई विल डिस्कस इट विद यू। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले जो कंडीशन चेक होती है वो होती है आपकी दिस, लेट्स नेम इट एज ए। ये आपकी जो पहले इंट आई इज इक्वल्स टू 1, जैसे आप इस लूप के अंदर एंटर होते हो कंडीशन चेक करने के दौरान उसमें जो है सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 1,
ये इसको मैंने ए नाम दिया, ये सबसे पहले चेक होंगे कि आपकी आई की वैल्यू क्या है, तो ये सबसे पहले चेक होगी। उसके बाद चेक होगा ये कि आपका आई जो भी आपने स्पेसिफाई किया नंबर उसकी लेस देन और इक्वल्स टू है। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आपका आई 10 से कम या फिर 10 के इक्वल है, तो मेरा आई की वैल्यू क्या है 1, तो जी हाँ है, ये हो गई मेरी बी। तो फिर सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा। आप कहोगे ये क्या बात करो, ये पहले ये होगा फिर ये होगा ये होगा, नहीं ऐसा नहीं, ये तीसरी बार नहीं होता है, तीसरी बार होता है ये, हाँ जी, इसको हम सी नाम देते हैं। तीसरी बार होता है ये एग्जीक्यूट, ये चेक नहीं होता डायरेक्टली, इसके अंदर जाता है। पहले होगा ये इंट आई इज इक्वल्स टू 1, तो पहले ए वाला पहले रन होगा, पहले ये चेक होगा कि क्या आई की वैल्यू 1 है, पहले उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर चेक भी नहीं कर रहे, उसको डायरेक्टली हम आई में एक पुट कर रहे हैं, ठीक है। आई में मैंने एक पुट कर दिया, ठीक है, ये होगा मेरा पहला। उसके बाद दूसरे में क्या होगा कि क्या मेरा आई का जो वैल्यू है क्या वो 10 के कम है या फिर 10 के इक्वल है, तो हाँ एक ही था उसमें, पहले सबसे पहले जब रन होगा तो उसमें एक ही वैल्यू रहेगा, तो हाँ जी 10 के तो कम ही है, ठीक है। तो ये दूसरी बार होगा, मतलब इसके बाद ये चेक होगा। उसके बाद ये डायरेक्टली नहीं होता है, उसके बाद हमारा जो आइटरेटर रहता है, जो हमारा कंपाइलर लेता है, वो इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, फिर उसको प्रिंट कर देता है। तो सबसे पहले आपका प्रिंट होगा भूषण। बट यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे था पता है क्या, सबसे पहले आपकी ए वाली कंडीशन चेक हुई, उसके बाद बी वाली, और उसके बाद सी, ठीक है ना। अभी ये हो गया आपका पहले टाइम आपका ये लूप रन हो गया, आपको प्रिंट होकर आ गया ना, तो पहला हो गया एग्जीक्यूट, आपको प्रिंट होकर आ गया स्क्रीन पर भूषण, तो ये था पहला एग्जीक्यूशन। अभी हम आते दूसरे एग्जीक्यूशन पर कि दूसरे एग्जीक्यूशन में क्या होगा। अभी दूसरे एग्जीक्यूशन में स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा, दूसरे एग्जीक्यूशन में यहाँ से जाएगा, पावर यहाँ पर जाएगा, मतलब कंट्रोल इसके पास जाएगा, यस कंट्रोल आई वांटेड टू से, कंट्रोल इसके पास जाएगा, फिर अपडेशन होगा आई प्लस प्लस होगा, ठीक है ना। तो इसको हम डी कहते हैं अभी के लिए, ठीक है। दूसरे लूप में सबसे पहली कंडीशन जो चेक होती है वो होती है ये वाली, अपडेट होता है, डी वाली कंडीशन चेक होती है, तो इसको हम नाम देते हैं 4, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन दूसरे लूप में सबसे पहले चेक ये होगी, इवेल्युएट होगी या फिर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो आपकी ऑलरेडी वैल्यू क्या थी, आई की 1 थी, तो अभी कितनी होगी, हेलो 2 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ठीक है। तो सब दूसरे लूप में सबसे पहली कौन सी, इसको ध्यान में रखो, दूसरे लूप में सबसे पहले वाली ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन एग्जीक्यूट है, उसके बाद होगी ये वाली बी वाली। अब बी में क्या होगा कि क्या 2 मेरा 10 से कम है, क्या है 10 से कम, यस तो है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी फिर हमारा फिर से कंट्रोल जाएगा इसके पास लूप के अंदर, फिर हमारी सी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो ये हो गया मेरा दूसरा टाइम, मतलब हमको प्रिंट होकर आ जाएगा दूसरी बार भूषण। गेटिंग द पॉइंट। अभी तीसरी बार भी हम सेम चीज करते हैं इसके बाद जाएगा कंट्रोल इसके पास। अभी ये कंडीशन तो सिर्फ पहले में ही होती है, उसके बाद इसको चेक ही नहीं करते पहले वाली कंडीशन को। उसके बाद सेम लूप होता है, फिर से हमारी डी वाली मतलब आई प्लस प्लस होगा, मतलब अभी ये 3 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। तीसरे लूप में क्या होगा, हमारी सबसे पहले डी वाली कंडीशन होगी, तो 2 की जगह 3 हो गया। क्या मेरा 3 10 से कम है, मतलब बी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, हाँ जी है, फिर से प्रिंट होकर आ जाएगा भूषण। तो ऐसा चलते जाएगा 9 तक तो सेम होगा, 9 तक हमको सेम प्रिंट होकर आ गया भूषण। अभी मैं आपको 10 की बात करता हूँ, ठीक है जहां पर हमारी आई प्लस प्लस होकर वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई 10 में चेक करेगा। पहले हम डी को कंडीशन आई प्लस प्लस कर दिया, आई की वैल्यू डी मतलब 10 हो गई। फिर आएगा बी के पास, बी वाली कंडीशन में क्या मेरा जो आई है क्या वो 10 से कम है या फिर 10 के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ट्रू होगी, तो हमारी बी वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। फिर उसके बाद सी में जाएगा, सी वाले में प्रिंट होकर हमको 10वीं बार भी भूषण प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा मेरा 10। अभी आई फिर से क्या होगा, प्लस प्लस होगा, मतलब डी के पास कंट्रोल जाएगा, डी के प्लस गया, आई प्लस प्लस 11 हो गया, ठीक है। और फिर से क्या बी वाली कंडीशन चेक करेगा। इस बार क्या कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा 11 10 से कम है या फिर 10 के इक्वल है, तो इसके बाद लूप से एग्जिट हो जाएगा जी, हम बाहर आ गए लूप के। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर आई की वैल्यू चेक करोगे ना,
आई की वैल्यू बढ़कर 11 हो चुकी है। यहाँ पर आई में 11 वैल्यू है, आई में 10 वैल्यू नहीं, आई में 11 वैल्यू। हम इसको देखेंगे भी, तो इसको हम चेक भी करेंगे कि आई में सच्ची में 11 वैल्यू क्या। इसने आई को अपडेट तो कर दिया, बट यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने वो हो गई, इसलिए लूप के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारी कंडीशन ब्रेक। आपको क्या फॉर लूप का फ्लो समझ में है, फॉर लूप कैसे काम करता है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी इसको हमेशा के लिए मतलब रट्टा फायदा करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ ये आपको रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये आउटपुट आना चाहिए, बट वैसा आउटपुट नहीं आता। तो उस टाइम पर इसको सिर्फ एक बार पेज पर ड्राई रन करना कि मेरा फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंडीशन हो रही है, फिर आपको पता चला कि हाँ इस वाले पॉइंट पर हम गड़बड़ कर लिया हमने, तो यहाँ पर लॉजिक गलत जा रहा है। अगर आपको ये पता हो गया, ये अगर आपको अभी पता हो ही गया ऑलरेडी, तो इसके आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतना समझ गया होगा सबको, तो इसके आगे तो कहानी बहुत ही स्मूथ है। किसी को कुछ भी डिफिकल्टी 1%, 0.1%, 0.001% इसमें डिफिकल्टी, एनीवन? हाँ सिंटैक्स की डेफिनेशन मतलब अभी देखो, हाँ फॉर्मेट, एग्जैक्टली फॉर्मेट। जैसे तुम लेटर लिखते हो, ठीक है, लेटर लिखते हो तो उसका एक फॉर्मेट लगता है कि इस साइड पे तुम्हारा एड्रेस रहना चाहिए, एंड में वो सिंसियरली वगैरह रहना चाहिए, बीच में बॉडी रहनी चाहिए, ऐसा सिंटैक्स रहता है ना, फॉर्मेट रहता है चीज़ को, वो और सिंटैक्स में एक स्पेसिफिक चीज़ ऐसी आती है कि आपको कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। आप जैसे यहाँ पर फॉर कीवर्ड है, वो आपको यूज़ करना है, यहाँ पर सेमीकोलन है आपको यूज़ करनी है, पैरेंथेसिस है यूज़ करना है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट, सॉरी सिंटैक्स। गेटिंग द पॉइंट? हाँ दैट्स इट। जैसे कि अभी मैं आपको ये इरेज कर दूं क्या? अगर मैं जैसे बताऊं कि आपको इफ का सिंटैक्स बताऊं, ठीक है ना, तो इफ का सिंटैक्स कैसे रहता है? इफ ये कीवर्ड रहता है, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर आती है आपकी एक्सप्रेशन, और इसके अंदर आता है आपका लॉजिक। इसको हम सिंटैक्स कहते हैं बेसिकली। ये दैट्स इट, ये कुछ कोड नहीं है, ये सिंटैक्स है कोड का। इसको इसी तरीके से इफ लूप रहता है। गेटिंग द पॉइंट? हाँ उसी तरीके से फॉर का सिंटैक्स कैसा है पता है क्या? फॉर का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, दिस इज योर फॉर लूप सिंटैक्स। तो इस तरीके से सिंटैक्स रहता है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, आपको आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें फैमिलियर होती जाएगी। हाँ तो लेट्स मूव ऑन विद द कोडिंग पार्ट। लेट्स डिस्कस नाउ। इस वाले कोड को मैं क्या कर दूँ अभी, रहने देता हूँ, अच्छा दिख रहा है। या फिर यार फॉर लूप, हम सेशन 5 में सिर्फ फॉर लूप देखने वाले थे, इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। आई वांटेड टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट विद द फॉर लूप, ठीक है। तो ऑलरेडी तुम देखोगे ना, तुमने 1 घंटा 10 मिनट हो गए यार, अभी बचा कुछ 1 घंटा, उसमें क्या ही पढ़ लूँगा। ठीक है ट्राई करते हैं। To be honest, we are lagging very behind. We are 2 sessions behind. Whatever I have targeted or whatever we have designed the course, according to that, हम 2 sessions पीछे हैं। तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो चीज़ों को समझने के लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा क्या हम स्लो जा रहे हैं क्या, या फिर मेरी स्पीड स्लो है? हाँ बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते आगे। नहीं एक्सटेंड नहीं यार, वो मेरे को ही पसंद नहीं एक्सटेंड करना, पता है क्या? क्योंकि जब मैं दूसरों के लेक्चर में बैठता हूँ तो 1 मिनट भी वो ज़्यादा हो जाता है, तो मैं टाइम देखते रहता हूँ कि यार हो गया ना तेरा टाइम, तो फिर वो मैं खुद कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि टाइम पर ही छोड़ने का, बट कभी कभी हो जाता है। बट हाँ पता नहीं बट इसके मतलब इन फ्यूचर वी विल सी कि एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़े कि, तो उस टाइम पे टेढ़ा मुँह मत करना, क्योंकि वी हैव टू बैलेंस द थिंग्स। बोलना। अरे 8 o'clockला हां चालेल ना, बट कसं असते मोस्टली जे घरी राहतात त्यांचं मी बघितलं की 8ला जेवण असते, 8 8:30ला जेवण करतात ते, 9 पर्यंत जेवण वगैरे होऊन जातात। 11ला कोणी युजली जेवण करत नाही ना, 11-12ला करते का कोणी?
तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की 9पर्यंत आपले घरचे कामांचं जेवण वगैरे सगळं काय करून 9 ते 11 वी कॅन डू इट, म्हणून म्हटलं. मला 8 जमणार पण नाही. हां ठीक आहे, नाही आय कॅन अंडरस्टँड, देर आर लॉट मेनी प्रॉब्लेम. हाँ राइट. चांगला है यार, तो तुम लोगों को बोर नहीं होता, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि 2 घंटे बैठे एक जगह पे, एंड वो जब टाइम पता चलता है ना तो वो बहुत बुरी चीज़ रहती है कि हम टाइम गिनते हैं कि कब सेशन एंड होगा. दैट शुडंट बी द केस. ठीक है, फिजल की बातें कम, फोकस. तो हम सबसे पहले करने वाले भूषण को 10 बारी प्रिंट करने का काम. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज मेरे को पता नहीं अभी भूषण नाम कितनी बार प्रिंट करना है, तो आई कैन जस्ट से इट एज, हम क्या करेंगे, लेट सपोज भूषण डिसाइड करेगा कि उसका नाम कितनी बार प्रिंट करना है. ठीक है ना, तो जितनी बार भूषण को उसका नाम प्रिंट करना है, उस इंटीजर की वैल्यू कितनी टाइम्स उसको प्रिंट करना है, वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं. तो लेट्स नेम इट एज इंट नंबर. ठीक है, और वो हमको भूषण देने वाला है, उसको मैं नंबर के अंदर स्टोर कर दूंगा. भूषण के लिए एक मैसेज भी दे देते हैं, प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू प्रिंट योर नेम. दैट्स क्वाइट इनफ. ठीक है, उसके बाद हम लगाने वाले हमारा फॉर लूप. तो फॉर हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है. इंट आई इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, और कहाँ तक जाना है हमको, 10 तक जाना है, तो आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10. ऐसा भी कर सकता था मैं, या फिर आई इज़ लेस देन 11 डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता था, दोनों ही सेम है. ठीक है, अभी के लिए आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 करता हूँ. और लेट से इसको मैं क्या करता हूँ, जितने भी टाइम्स में भूषण चाहता है कि उसका 10 बार प्रिंट हो, 11 बार प्रिंट हो, 20 बार, 100 बार, वो वैल्यू किस में अंदर रहेगी, नंबर के अंदर रहेगी, क्योंकि वो तो हमको भूषण बताने वाला है. तो आई कैन जस्ट कॉपी एंड आई कैन जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर. वो भूषण डिसाइड करेगा उतने टाइम्स हमारा लूप चलेगा, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार. सो दैट डिपेंड्स ऑन भूषण. ठीक है, उसके बाद मेरे को 1 से बढ़ाना भी, हर बार 1 से बढ़ाते रहना है मेरा लूप. ठीक है ना, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, सी आउट भूषण को प्रिंट करना है. ठीक है, इसके बाद आप स्पेस भी दे सकते हो, लगे तो एंडर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे फालतू का इंडेंटेशन दे रहा है, शायद आपको ना भी दे. उसके बाद मुझे एंडिंग में लिखना है रिटर्न 0. नहीं लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंटैक्स अच्छा है लिखने का. तो उसको मैं रन करता हूँ, एंड द फर्स्ट मैसेज दैट यू विल बी गेटिंग इज प्लीज एंटर नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू प्रिंट योर नेम. भूषण, कैन यू जस्ट गिव मी द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू प्रिंट योर नेम. अरे यार, तो के लिए इतना बड़ा फॉर लूप लिखवा दिया. भूषण 2 बार आ गया. एक बार फिर से यार, इतनी बड़ी लाइन लिखी, एक बार बड़ा नंबर बोलो. ये भाई तो बड़ा नंबर सोचने का था, बड़ा. हाँ 100, ऐसा कुछ बड़ा सोच यार. क्या तू 2 7 पट का है, ये हो गई ना बात. इतना बड़ा कोड लिखा है यार, और तू 2-4 बार प्रिंट कर रहा है. देखो इतने से कोड में इतना बड़ा काम हो गया. 100 बार प्रिंट होगा तुम्हारा नाम. ठीक है, तो ये है जलवे फॉर लूप के. ठीक है, आई होप द बेसिक थिंग्स अबाउट फॉर लूप इज क्लियर टू यू ऑल, एंड लेट्स मूव ऑन. तो मैं क्या कर सकता, हाँ, आई हैव टोल्ड दैट ऑल यूर ओनली कैन जस्ट प्रेस एंटर ओवर हियर, and that will give me the name on the next line. If I just run the code and if I just press 10 this time, तो आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर जाएगा. दैट इज कॉमन. ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ भूषण ही नहीं है, अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक नंबर चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने 1 से चालू कर दिया. यहाँ पर अगर मैंने नंबर की जगह 10 एंटर कर दिया, तो ये मेरे को 10 तक भी नंबर दे सकता है. कैसे कर सकता हूँ मैं, बस मेरे को आई प्रिंट करना होगा, क्योंकि ये आई ही तो हम अपडेट कर रहे हैं ना. आई पहले 1 है, उसके बाद आई क्या हो रहा, आई को हम चेक कर रहे हैं कि आई नंबर से कम है. तो अगर मैंने नंबर की जगह 10 डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा,
आई पहले 1 था, फिर आई का 10 से कम यहाँ जी है, आई फिर प्रिंट कर देगा 1, उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर से चेक करेगा 10 से कम है क्या, फिर से प्रिंट कर देगा 2 3 4 5 ऐसे हम आई को भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एंडल दे देता हूँ, या फिर मैं लगे तो एक स्पेस दे देता हूँ, लेकिन जस्ट प्रिंट दिस आउट। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली मुझे 10 तक नंबर प्रिंट होकर आएंगे, ठीक है ना। प्लीज़ एंटर द नंबर, एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 दे दिया है वहाँ पर। सो यू कैन गेट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। बेसिक फॉर लूप समझा है सबको, कुछ भी डिफिकल्टी इसमें एक और चीज़ कर दूँ कि यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, लेस देन 11 करता हूँ, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, 10 तक जाएगा और 11 के टाइम पे एग्जिट हो जाएगा। लेस देन 11 मतलब 11 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ 10 बार एग्जीक्यूट होगी ना, ठीक। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 10 भी कर सकता हूँ, दिस बोथ आर सेम, ठीक है ना। बट ट्राई करो लेस देन इक्वल्स टू 10 यूज़ करना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर 10 हालांकि एंटर नहीं, ये जो वैल्यू लेते हैं यूज़र से लेते हैं, जैसे हमने बूशन से लाया था नंबर, तो वो ज़्यादा यूजफुल रहता है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो, उतने टाइम से हमारा लूप रन होगा, दैट इज़ द बेसिक केस। यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे लेट सपोज क्या करना है, व्हाट आई वांटेड टू डू इज आई वांटेड टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50, आई वांटेड टू प्रिंट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50। सो मैंने इंट नंबर ले लिया, ठीक है। इंट नंबर के अंदर मैं डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूँ ना 50, क्योंकि मेरे को 50 तक करना है, मेरे को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो मैंने इंट नंबर इक्वल्स टू 50 कर दिया, मैं फिर से फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई 1 से शुरू करो, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, जो कि मेरा 50 है, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस करो, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इफ वाली कंडीशन लिखूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है, तो आई कैन से दैट मेरा जो आई है, आई मॉड्यूलो 2, अगर वो इक्वल होता है 0 से, मतलब क्या, मेरा आई इवन नंबर है, और जैसे मेरा आई इवन नंबर होता है, कैन जस्ट प्रिंट दैट आई, ठीक है ना, आई कैन जस्ट प्रिंट दैट आई, और उसके बाद मैं स्पेस लगा देता हूँ, या फिर अगर स्पेस बहुत बार लिख ली, पर स्पेस लिख लो यार, क्योंकि वो नीचे जाएगा, तो ठीक है, एंटर कर देते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोड क्या करेगा, मुझे बेसिकली मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, मेरा 1 से शुरू होगा, नंबर लेस देन और इक्वल टू आई नंबर लेस देन और इक्वल टू नंबर तक जाएगा, जो मेरा 50 है, मतलब 50 तक लूप चलेगा मेरा, और आई प्लस प्लस मैं हर बार एक चीज़ को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें 1 चेक होगा, क्या मेरा 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है, क्या जी है, क्या ट्रू है कि फॉल्स है। हेलो, ट्रू है ये चीज़, 1 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, आर यू गाइज। तो इसमें जाएगा कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नो। तो फिर से क्या होगा, इससे बाहर आएगी, आई प्लस प्लस होगा, तो इस बार 2 होगा, तो क्या 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसे करते करते हमको सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे, इट्स क्वाइट इजी। तो आप अगर देखोगे तो आपके स्क्रीन पर क्या है, आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 20 50 तक आपको सारे इवन नंबर्स प्रिंट होकर आ गए। किसी को याद है कि हमने ये सेम मैंने कहा था आपको एक फ्लो चार्ट लिखने के लिए इसका, इवन नंबर्स को प्रिंट करने का, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में क्या नंबर लिया था, 2 लिया था। क्यों 2 लिया था, मैंने क्या कहा था आपको, 1 से लेकर n तक इवन नंबर्स प्रिंट करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n हमको पता नहीं है, n आप दोगे कि 1 से लेकर n मुझे पता नहीं, आप दोगे कौन सा n कि उस तक मेरे को इवन नंबर प्रिंट करना है। तो मुझे पता था कि 1 से लेकर करना है, तो मेरा 1 तो इवन नंबर नहीं है, पहला नंबर इवन कौन सा है, 2 है, तो मैं i को 2 से भी स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। एंड आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर की जगह n करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर n किया, जो कि मेरे को यूज़र से इनपुट करना है, सी इन n, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम अपडेट किससे करते थे, आई प्लस प्लस करते, वहाँ पर मैंने अपडेट किससे किया था, वैल्यू को मैं कितने से बढ़ा रहा था, वहाँ पर 2 से बढ़ा रहे थे हम, 2 से बढ़ा रहे थे वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, आई प्लस प्लस मतलब आई को 1 से बढ़ाने से अच्छा
मैं आई को 2 से बढ़ाता हूँ, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2, ठीक है ना। तो इसको मैं शॉर्ट हैंड वे में कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 को मैं शॉर्ट हैंड वे में कैसे लिख सकता हूँ, शॉर्टकट देखा था हमने, आई प्लस इज इक्वल्स टू 2, राइट। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर द थिंग्स नाउ, तो इट्स मेकिंग अ सेंस। जो भी हमने पढ़ा है वो हम कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 से मेरी आई की वैल्यू बढ़ाऊँ, तो मुझे अभी इसका काम नहीं है आज सच, ठीक है ना। आई एम नॉट सपोज टू राइट दिस केस, आई कैन डायरेक्टली प्रिंट आउट सी आउट आई, ठीक है। उसके बाद लगे तो मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका लॉजिक समझो, मैंने क्या किया, एंटर किया n, लेट्स सपोज मैंने एंटर किया n 50 या फिर 51 भी किया, आपने ऑड नंबर एंटर किया, 51 एंटर किया, ठीक है। इंट आई कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी कि 1 to n प्रिंट करना है। तो सबसे पहला नंबर मेरे को पता है 2 है, तो मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया, आई को 2 से असाइन कर दिया। फिर क्या किया मैंने, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n, मतलब क्या किया मैंने, हमारा आई क्या रहेगा, अगर आपको 51 तक चाहिए तो 51 तक जाओ, हमारी n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 51 डाल दी। इसको आप इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पर 51 डाल दिया, जो कि हमको यूज़र ने दिया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जो कि हमारी n में स्टोर है। और मैंने क्या किया, आई को, मेरे को पता है कि 2 के बाद जो दूसरा वाला नंबर है वो हमेशा 2 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ा तो वो तो ऑड हो जाएगा ना, एक मैंने 2 के अंदर 1 को ऐड किया तो वो 3 हो जाएगा, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए मैंने उसमें 2 से इंक्रीमेंट किया, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। इसलिए मेरा हर बारी मेरे को क्या हो रहा, 2 से नंबर बढ़ रहा, दैट मीन्स कि मुझे हर बार एक इवन नंबर मिल रहा है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 15 14 16 18 ऐसे 46 48 50 एंड 50 + 2 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि मेरा n से बड़ा, n से क्या होगा, 52 विल बी ग्रेटर देन 51, तो तब मेरा लूप एग्जिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इफ आई जस्ट रन द कोड, I will be getting the output as, I will have to enter the number. Let's say I enter 51. So you can see that we are getting all the even numbers printed till 50. Okay. So we have what we have did is we have reduced one step, that was checking the if condition. So if we have reduced one step, that means we have reduced the time complexity. That means this program is more time efficient than our previous one, ठीक है ना। सो ये तो हो गया कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एक और देख ही लेते हैं, या फिर मेरे लिस्ट में कोई और बेसिक क्वेश्चन है क्या। प्रोग्राम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। या हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमने देखा कि अगर मेरे को n तक नंबर प्रिंट करना है, 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट करना है, जो n मुझे आप दोगे, तो हाउ कैन आई डू इट, आई कैन जस्ट से इंट 1 से लेकर n तक करना, तो इंट आई इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद आई से मुझे n तक प्रिंट करना है, तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू आई, और उसके बाद आई प्लस प्लस करना है, सी आउट आई, उसके बाद एक्सप्रेस। इसको अगर मैं रन करूँगा कोड, तो आई विल बी गेटिंग नंबर्स प्रिंटेड टिल n। लेट्स सपोज मैं 15 करता हूँ, तो मुझे 1 से लेकर 15 तक प्रिंट हो गए सारे नंबर। व्हाट इफ आई वांटेड टू रिवर्स दिस नंबर, मेरे को सारे नंबर एक रिवर्स फॉर्मेट में प्रिंट करने हैं, मतलब 15 14 13 12 10 11 9 ऐसे करके मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हाउ कैन आई डू इट, अभी मैं 1 से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, मैं मेरा लूप 1 से स्टार्ट कर रहा था, तो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे क्या, अभी सबसे पहला जो नंबर चाहिए वो मेरा n ही चाहिए। क्या चाहिए, मुझे n चाहिए। अगर मेरे को यूज़र ने कहा कि अब हमने अभी 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट कर रहे थे, मतलब आपने 1 से लेकर, अगर आपने 15 वैल्यू एंटर की n की, तो हम 1 से लेकर 15 तक वैल्यू एंटर कर रहे थे। अभी मुझे सेम चीज़ रिवर्स वे में चाहिए, तो मेरा पहला नंबर 15 हो जाएगा। 15 इज नथिंग बट आर n, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा n है, आखिरी वाला। तो मैं i में क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, n की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और हमारा कब तक चाहिए, हमको 1 तक चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा i हमेशा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 से क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या चाहिए, 1 चाहिए, n की जगह हमको 1 चाहिए, ठीक है ना। और मुझे अभी चीज़ें बढ़ानी नहीं है, अगर मेरी n 15 है तो मुझे 16 नहीं करना है, मुझे 14 करना है, दैट मीन्स आई हैव टू रिड्यूस, तो आई कैन जस्ट से माइनस माइनस, ठीक है, एंड सी आउट आई कर दूंगा। तो ये क्या देगा, मुझे सेम चीज़ रिवर्स में देगा। लेट्स से अभी मैं 15 डालता हूँ, तो मुझे क्या 15 14 13 12 11 12 9 1 तक। इज इट क्लियर, रिवर्स वे में कैसे किया। ओके ओके,
तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जैसे हम एक बार हमारा जो प्रीवियस वाला लॉजिक है, ये था हमारा प्रीवियस वाला लॉजिक, ठीक है। प्रीवियस में क्या कर रहे थे, हमको अगर 1 से लेके 15 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है ना। मुझे 1 से लेके 15 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे करता था, मेरे पहली वैल्यू 1 रहेगी, तो मैंने आई में क्या असाइन कर दिया, 1 असाइन कर दिया, जो मेरी पहली इनिशियल वैल्यू है दैट इज 1। इतना क्लियर है। अभी मुझे कहाँ तक लूप चलाना था, 15 तक लूप चलाना था, ठीक है। तो मेरी एन के अंदर 15 वैल्यू ऑलरेडी मैंने इनपुट की है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, my I should be less than or equals to n, that is 15. So my I is less than or equals to 15 तक चलना चाहिए। So this is the मतलब मेरी आखिरी वैल्यू कब कौन सी रहेगी, 15। तो जब जैसे मेरी आखिरी वैल्यू 15 रहेगी, लूप एग्जिट हो जाएगा। और मेरे को 1 से फिर 2 करना है, 2 से 3 करना है, तो मेरे को एक से इंक्रीमेंट करना है, एक से चीज़ को बढ़ाना है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंक्रीमेंटिंग माई आई वैल्यू बाय 1, ठीक है। 1 से लेके फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जैसे होगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। और सिमिलर चीज़ को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ये हो गया लॉजिक 1 से लेके n, दैट मीन्स 15 तक प्रिंट करने का। अभी मुझे ये अपोजिट में करना है, मतलब मुझे सबसे पहला नंबर जो चाहिए वो 15 चाहिए। दैट मीन्स मुझे सबसे पहला नंबर चाहिए n होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 15, जो मुझे यूजर इनपुट देगा। मेरे को रिवर्स में करना है ना, मेरे को 15 से 1 तक चाहिए, तो मेरी लास्ट वाली वैल्यू अभी फर्स्ट बन जाएगी रिवर्स में। लास्ट वाली वैल्यू जो 15 थी वो मेरी फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, दैट मीन्स आर n। और मेरी जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो लास्ट बन जाएगी, मतलब लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो मेरे को 1 तक ही तो चलाना है ना, और मेरे को चीज़ें रिवर्स में लेके जानी है, मतलब एक से चीज़ें रिड्यूस करनी है। तो कैसे करूँगा मैं, i माइनस माइनस, गेटिंग द पॉइंट। I just run the code again and let me input the value of n. If I enter the value of n as 30, तो मुझे कुछ भी नहीं आउटपुट है। क्यों नहीं आउटपुट है कुछ भी, तो मुझे यहाँ पर i is equals to n, c in n for int i is equals to n, int n, c in n for int i is equals to n। यहाँ पर मुझे I should be greater than equals to 1 चाहिए मुझे, not less than equals to 1, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो I expect that I should get the right output। और मैं 30 करता हूँ तो yes, तो मुझे 30 29 28 26 ऐसे करते करते मुझे 1 तक वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर, एनीबडी एनी डाउट? बेसिक चल रहा है, हमें बहुत बेसिक चल रहा है। अभी अगर किसको डाउट है तो अभी बोल दूँ, क्योंकि आने वाले में फिर आपको बाउंसर लगेंगे सारे के सारे। प्राची, निमय, भूषण, अनिशा, कुछ भी डिफिकल्टी? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सब कुछ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। तो दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आपको बेसिक तो पता चल गया कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देते जाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको करना है, आपको जस्ट लॉजिक बिल्ड करना है कि हम कैसे कैसे फॉर लूप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे भी टूटा फूटा आपको जमता होगा आंसर करना सिर्फ, ठीक है। तो व्हाट आई वांटेड टू डू इज कि जैसे हमने अभी देखा था कि हम क्या कर रहे थे, वी वर प्रिंटिंग द इवन नंबर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से मुझे क्या चाहिए कि मेरा नंबर इवन तो रहना चाहिए, मुझे 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट करने हैं, जो जिसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। एक तो मेरा नंबर इवन रहना चाहिए और दूसरा मेरा नंबर डिविजिबल बाय 7 रहना चाहिए। जो भी मेरा नंबर आएगा प्रिंट होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो हाउ कैन आई डू इट? माई क्वेश्चन इज कि आपको 1 से लेके n तक नंबर्स प्रिंट करने, 1 से लेके n तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, बट जो भी नंबर्स प्रिंट होंगे उसके अंदर जो नंबर्स प्रिंट होकर आएंगे वो मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए और डिविजिबल बाय 7 चाहिए।
हमने ऑलरेडी देखा। अब कोई मेरे को सिर्फ ये बताओ कि हम इवन नंबर को कैसे करते थे प्रिंट, इवन नंबर को कैसे करते थे, कोई बताएगा? स्टार्टिंग से बताएगा। हम सबसे पहले एक यूजर से नंबर लेंगे, इनपुट, I is equals to n directly. हाँ मतलब दोनों लॉजिक सही है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। अभी के लिए हम इफ वाले लॉजिक में जाते हैं। हमने कैसे किया था? But in this case you will also have to check two conditions. You don't have to check only one condition. You have to print numbers from 1 to n. That should not just be even, but that should also be divisible by 7. So you are checking two conditions. Getting the point? तो यहाँ पर हमको एक तो पता है कि हम इवन नंबर चेक करने के लिए कंडीशन थी। तो उसी तरीके से हम अगर कोई नंबर चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? डिवाइड आई मॉड्यूलो 7 करेंगे बेसिकली। अगर कोई भी हमको देखना है तो सिंपल चीज़, जैसे हम 2 से देख रहे थे, इवन नंबर मतलब क्या, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, उसी तरह अगर 7 का मल्टीपल मतलब 7 से भी डिवाइड हो, उसका मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 देगा, तो हमको मॉड्यूलो यूज़ करना होगा। अगर डिवाइड करेंगे तो मैं लेट सपोज 14 एंटर कर रहा हूँ, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2। तो 2 मतलब क्या? तो वी आर नॉट गेटिंग अ पॉइंट, हमको रिमाइंडर 0 चाहिए। गेटिंग द पॉइंट, हमको क्वेश्चन नहीं चाहिए। डिवाइड करोगे तो हमको क्वेश्चन मिलेगा आंसर। Division always gives us the question. We want the remainder to be 0. That means it should be completely divisible. So we use the modulo operator. तो पहला तो ये था कि मुझे क्या करना है कि दो कंडीशन चेक करनी है। एक तो वो नंबर इवन रहना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर लॉजिकल एंड यूज़ करूँगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरा आई शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो आई मॉड्यूलो 7 इक्वल्स टू 0। is the case here. Is it still the case? अभी क्लियर है क्या? अच्छा, असं मला जेव्हा पण होईल ना तेव्हा स्टॉप करायचं। अभी सब क्लियर है? हाँ, ये इतना क्लियर है। हमने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ हमने सबसे पहले चेक किया कि हमारा हम जो भी नंबर प्रिंट करने वाले हैं वो क्या रहना चाहिए, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले तो वो इवन नंबर रहना चाहिए और दूसरा मतलब डिविजिबल बाय 7 रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों कंडीशन लगा दी। ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए। एक कंडीशन ट्रू होती तो मैं यहाँ पर और लिखता था, लॉजिकल और, बट मेरे को दोनों कंडीशन अगर ट्रू रही तभी मुझे क्या चाहिए, वो नंबर प्रिंट होकर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आई कैन जस्ट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सी आउट माई आई। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। एंड मैंने यहाँ पर नंबर हम यूज़र से लेने वाले। ठीक है, तो आई कैन जस्ट आई कैन जस्ट एंटर द नंबर एट, लेट सपोज मैं 50 करता हूँ या फिर अभी के लिए 30 करता हूँ। तो 30 के बीच में जो भी नंबर्स है 1 to लेके 30, उसमें के जो भी इवन नंबर्स है एंड ऑल्सो द नंबर्स हु आर डिविजिबल बाय 7, वही मेरे को प्रिंट होकर चाहिए। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स विच आर इवन and divisible by 7 between 1 to 30. There is, can you imagine a number between 1 to 30 that is even and also divisible by 7? Any number except 14 and 28. Yeah, except that, is there any number?
हाँ, नो, सो देर इज नो नंबर बिटवीन 1 to 30, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 नंबर्स ओनली। तो आई होप दिस थिंग इज मेकिंग सेंस टू यू। इसमें किसको कुछ भी डिफिकल्टी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। क्वेश्चन की तो आज बरसात होगी, क्योंकि फॉर लूप में जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा कमांड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, इंट नंबर ले रहे हैं। आप एक नंबर एंटर करोगे, आपने लेट सपोज 7 एंटर किया, तो इस बार आपको 7 का टेबल प्रिंट करना है। टेबल पता है सबको? तो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें आप खुद बताओगे, ठीक है। हमने यूज़र से लिया, लेट सपोज यूज़र से लिया, एक सेलेक्टेड पर्सन को पूछूंगा, नहीं तो जो जिसको कोई लोग बोलते ही नहीं उनको बोलना सिखाना होगा सबसे पहले। तो कौन नहीं बोलता? इसकी आवाज़ मैंने बहुत देर से सुनी नहीं है। प्रणव, प्रणव कैन यू जस्ट टर्न ऑन योर माइक? हाँ, सो माई क्वेश्चन टू इज, ऐसा कुछ कोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर लेट से आपको 7 का नंबर प्रिंट करना, लेट से आपको नोटबुक पर 7 का नंबर लिखना हो, ठीक है। तो उसकी उस आप में मैंने कहा कि आपको आपको n इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 7, n इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ 7, मतलब आपको 7 का नंबर लिखना है। तो आपका आप स्टार्टिंग किस नंबर से करोगे? आपका जो स्टार्टिंग वाला नंबर रहेगा टेबल में वो क्या रहेगा? 7 रहेगा, 7 रहेगा, राइट राइट राइट। पहला नंबर 7 रहेगा। आखिरी का नंबर क्या रहेगा टेबल में? 7 के आखिरी का कितना? 70, दैट मीन्स 7 into 10, राइट, 70 रहेगा। तो यहां पर आपको 2 चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? कि आपका स्टार्टिंग का पॉइंट मतलब i इज इक्वल्स टू आपका क्या है? 7, नॉट 1। और 7 मैंने क्या किया था? 7 मतलब आपका n, मतलब आपका नंबर जो आपने दिया है ना, 7 का टेबल प्रिंट करो तो दैट इज 7, दैट मीन्स योर नंबर। सो यू कैन से दैट i इज इक्वल्स टू नंबर। एवरीबडी अग्री विथ मी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर लूप, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट i इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है ना, क्योंकि आप नंबर एंटर करोगे। अभी आपने 7 नंबर एंटर किया तो वो नंबर में शो होगा 7। तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? 7 से करो। मेरे को एंड कहाँ पे करना है? 70 को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर के फॉर्म में। नंबर में 7 वैल्यू, तो मैं नंबर के फॉर्म में 70 को कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना 70 लिखना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? Number into 10, right, that is absolutely right. I can just see here as number into 10, that's it. और एक चीज यहाँ पर क्या हो गया? ये अब क्या करना था मुझे? I should be less than or equals to number into 10, देखिए सही है। और एक चीज, हमारा टेबल अगर मेरा 7 का टेबल है तो हर बारी कितने से बढ़ता है? 7 के बाद 14 के बाद 21, वो कितने से बढ़ रहा है? 7 से बढ़ रहा है। तो इंक्रीमेंट किससे करना है मुझे? 7 मतलब नंबर से। समझ रहा है चीजों को? समझ रहे हैं आप समझ रहे हो क्या? मतलब सारा कुछ नंबर में चल रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं ना 7 से करना है, क्योंकि यूजर 10 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है नंबर। तो हमको उसी चीज से इंक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि टेबल में क्या होता है, वो चीज हमेशा बढ़ते जाती है हर एक चीज के बाद। 15 है, 15 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 45 हो गया, 45 के बाद 60 हो गया, ऐसे ही नंबर, ऐसे ही टेबल लिखते हैं हम। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? अरे यार देखो, एक हाँ, यस, आई होप इट इज क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, नंबर नहीं चाहिए मुझे, आई चाहिए यहाँ पर, सॉरी, आई प्लस इक्वल्स टू नंबर। बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ यार, हाँ
अभी सही है, ये चीज़ समझे सबको। अभी क्या करूँ मैं, डायरेक्टली सी आउट कर दूँ, हो जाएगा मेरे को प्रिंट, टेबल प्रिंट हो जाएगा जो भी मैं चाहूँ। सबको लगता है प्रिंट होगा? अरे यार एक चीज़ में कॉन्फिडेंट ही नहीं रहते तुम लोग, होगा कि नहीं होगा? भाई वो गुस्से से यस है, पता है कि जिसने भी यस बोला ना वो बहुत गुस्से से बोला। ठीक है, तो मुझे लेट्स से मेरे को 12 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो 12 1 12 24 यू आर गेटिंग द राइट आउटपुट, गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट गाइस। आपको 12 का टेबल आ गया प्रिंट होकर। हाँ तो सही है, सही है, सही है, सही है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये तो मैंने नहीं, आप नहीं बनाया, इसी तरीके से अब आने वाले लूप्स भी आप ही बनाओगे, मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे दिखना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए भी मुझे कोई ना कोई वॉलंटियर लगेगा ऑफ कोर्स। किसको ले हाँ, रिया। कैन यू हियर मी? हाँ तो आपका पूरा नाम क्या है? रिया पाटिल, ओके ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना, ठीक है। आपका पूरा नाम ही काफ़ी है इस प्रॉब्लम के लिए, रिया पाटिल, ठीक। तो लेट्स से आपको क्या करना है, आपको गिवन अ नंबर n, आपको एक नंबर गिवन है n, ठीक है। गिवन अ नंबर n, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आइटरेट i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपका लूप स्टार्ट करना है 1 से टिल n तक जाना है, ठीक है। अभी ये 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया है 1, एंडिंग पॉइंट दिया है n, जो कि रिया बताएगी कौन सा भी। आप प्रिंट क्या करना है वो इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आपका नंबर, अगर आप जो भी ये नंबर रहेगा 1 to n, जो भी आप नंबर्स प्रिंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट से 50 तक, तो उसमें का जो भी नंबर, अगर ऐसा लेट सपोज अगर मैं डायरेक्टली 1 से लेके 50 तक नंबर प्रिंट कर दूँ, मतलब मेरी n की वैल्यू 50, तो मुझे कैसे आएगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते मुझे 50 तक प्रिंट होकर आ जाएंगे सारे नंबर, ठीक है। अभी मेरा क्या पॉइंट है कि आपको अगर इस नंबर्स में जैसे आप प्रिंट करोगे, इस नंबर पे जो भी नंबर, पहली कंडीशन क्या है, जो भी नंबर आपको मल्टीपल ऑफ बोथ किसका, 3 and 5, ठीक है। जो भी नंबर जो डिवाइड होते हैं 3 and 5 से, 3 and 5 से जो भी नंबर डिवाइड होते हैं, उस जगह पर आपको कंप्लीट नाम प्रिंट करना है, आपका कंप्लीट नेम। हियर द नेम इज रिया पाटिल, सो यू हैव टू प्रिंट योर कंप्लीट नेम, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज जो भी नंबर, ठीक है, इसमें आप 1 to 50 जो भी नंबर प्रिंट करोगे स्क्रीन पर, 3 और 5 का केस तो जो भी नंबर 3 and 5 से डिविजिबल है, वो क्या कर रहा है, उस जगह पे रिया आपका कंप्लीट नेम प्रिंट करना है। लेट सपोज यहाँ पर 15 रहेगा, बीच में 15 रहेगा, जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो 15 को मेरे को प्रिंट नहीं करना, मेरे को 15 की जगह क्या प्रिंट करना है, मेरा मतलब जो भी आपका नाम रहेगा वो आपको प्रिंट करना है, दैट इज रिया पाटिल, कंप्लीट नेम, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है मेरी, ये तो गई मेरी पहली कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, अगर मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाई 3 है, if the number is only divisible by 3, in that case you will only have to print your first name, that is Riya, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज अगर वो नंबर सिर्फ डिविजिबल बाय 5 है, तो उस वाले केस में सिर्फ प्रिंट करना है सर नेम, दैट इज पाटिल, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करो तो मेरा इस वाले केस में जहाँ पर 3 है, तो 3 मेरा कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, तो इस वाले केस में मेरे को 3 नहीं प्रिंट करना, मेरे को सिर्फ प्रिंट करना है नाम, पहला नाम, दैट इज रिया।
और जो भी नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल, लेट्स से यहाँ पर 50 है, 50 की जगह मेरे को सिर्फ प्रिंट करना है पार्टी, और रेस्ट ऑफ द जो भी नंबर्स इस कैटेगरी में नहीं आए थे वो वैसे के वैसे प्रिंट करने, ठीक है। 3 कंडीशन है मेरी, उस हिसाब से मेरे को कोड को क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आया या फिर से रिपीट करो एक बार? इजी है यार, समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी सॉल्यूशन, तभी आप सॉल्यूशन को फ्रेम कर पाओगे। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करें। हाँ, तो मैंने कहा ना, अगर इन तीनों में से किसी कंडीशन को प्रिंट नहीं करता तो आपका 1 2 3 जो आपने प्रिंट कर रहे थे ना 1 to 50, जैसे कि मेरा 1 इन इसमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना तो मेरे को 1 ही प्रिंट करना है, ठीक है। अगर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 3 एंड 5 से भी नहीं है, दोनों से भी नहीं है, तो लेट्स सपोज जो भी मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करना, तो उस वाले केस में सिर्फ 2 प्रिंट करना है, 4। ऐसे करते करते जो नंबर्स रहेगी वो तो प्रिंट करने हैं। अगर हाँ, एग्जैक्टली गेटिंग द पॉइंट? या तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डू हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कब तक आपको लूप चलाना है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट होगा एंड n तक जाना है। तो मैं सबसे पहले n की वैल्यू जो भी आपको n तक चलाना है वो आपसे लूँगा, तो आई कैन जस्ट से n, ठीक है। उसके बाद मेरा फॉर लूप स्टार्ट होगा। फॉर लूप ऑफ कोर्स इंट i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, एंड 1 से बढ़ना है मुझे 1 से बढ़ते रहना है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन क्या थी रिया? हेलो, हाँ 3 एंड 5, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आई मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 एंड आई मॉड्यूलो 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये राइट कंडीशन है? थ्री एंड 5, ठीक है, अभी राइट है, ठीक है। इज इट द राइट कंडीशन? तो अगर ये राइट कंडीशन है तो मुझे इसके अंदर क्या करना था? what I wanted to do when the both condition meet, see out I is equals to, नहीं, see out मुझे आपका नाम प्रिंट करना था ना, कंप्लीट। हाँ, तो आपका फुल नेम जो भी रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं आपका कंप्लीट नाम, ठीक है। जिस तरीके से हम क्या करेंगे, instead of directly printing the name, what we can do is we can store or we can take the input of the name also. How can I just take the name? String first name, I can say first name, and I can take the and I can just say the last name also. Similarly, last name भी लेना है मेरे को, ठीक है। And I can just take the input of the first name and last name. Enter first name and last name, ठीक है। हैंडल का कुछ काम नहीं है यहाँ पर। सी इन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट दे देता हूँ। सी आउट एंटर द नंबर 5, ठीक है। नंबर एंटर कर दिया मैंने, स्ट्रिंग में एंटर कर दी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो उसको भी मैंने होल्ड कर दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, ठीक है। अभी के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डायरेक्टली प्रिंट करना है। तो आई कैन जस्ट से फर्स्ट नेम एंड गिविंग अ स्पेस, आई कैन प्रिंट द लास्ट नेम एज वेल। दैट्स इट, दैट्स क्वाइट फाइन फॉर नाउ। एम आई गेटिंग एनी एरर?
as such see out first name space last name. एरर क्यों बता रहा है यहाँ पर ये? Endl, ANDL, that is the error. Okay, fine. अभी मुझे एक और कंडीशन चेक करना है, ठीक है? तो आई कैन यूज एल्स इफ, ठीक है? एल्स इफ में मेरी सेकंड कंडीशन क्या थी? इफ द नंबर इज, इफ अभी आप कहना है इसको, इफ मॉड्यूलो 3 आई मॉड्यूलो 3 अगर 0 होता है तो इन दैट केस आई कैन जस्ट सी आउट, व्हाट आई हैव टू सी आउट, फर्स्ट नेम, ठीक है? उसके बाद मेरे को एंडल करना है. और एक कंडीशन क्या थी? इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 0. In that case what I have to do is, ठीक है? और else में मुझे क्या करना होगा? आखिरी में अगर ये कंडीशन कोई भी मीट नहीं करे, then what I have to do? सी आउट आई, दैट इज राइट, ठीक है? आपको क्या करना होगा? सी आउट आई करना होगा, दैट्स इट. मतलब अगर ये कौन सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब आपको क्या करना है, उस जगह पे आपको जो भी आपका आई की वैल्यू है वो आपको प्रिंट कर देने, दैट्स इट, इनफ, ठीक है ना? तो आई कैन जस्ट डू इट, instead of writing endl again, I can just, what I can do is I can remove this thing and I can do it at the end also. मैं इसको एक ही साथ लिख सकता हूँ, इसको बार बार करने से अच्छा. आफ्टर द लूप आई कैन जस्ट सी आउट, हर एक इटरेशन के बाद आई कैन सी आउट एंडल, बार बार लिखने से अच्छा. दिस इज क्वाइट गुड. तो लेट्स सी इफ आवर कोड रन्स फाइन और नॉट. अभी के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एंटर द नंबर, ठीक है? रिया आप ही बताइए कौन सा नंबर एंटर करना है? 50, ठीक है? 50 एंटर किया. एंटर योर फर्स्ट नेम रिया एंड लास्ट नेम भी करना है मार्टिन, ठीक? तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर इज, देखो मेरे को पहले 1 आया प्रिंट होके, उसके बाद 2 आया, उसके बाद क्या आया? 3 पे क्या आया? रिया. क्यों? क्योंकि 3 क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय क्या है? 3 से, ठीक है ना? तो मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम आया, ठीक है? उसके बाद क्या आया था? उसके बाद कहाँ पर था मैं? यहाँ पर 4 आया, ठीक है? 4 मेरे को जैसे क्या जैसा प्रिंट हो गया, क्योंकि 4 डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, दोनों से भी नहीं है, ठीक है? तो मेरे को सिर्फ 4 आया. उसके बाद 5 क्या है? 5 सिर्फ डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है? तो मेरे को उस जगह पे सिर्फ सरनेम आया. 6 क्या? सिर्फ डिविजिबल बाय, देखो. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, राइट? यहाँ पर सिर्फ मेरे को क्या 15 पर, देखो 15 पर मेरे को पूरा कंप्लीट नेम आया. क्यों आया है? क्योंकि 15 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो एंड 5 ऑल्सो, ठीक है? सिमिलरली आप देखोगे कि अगेन वेयर मेरे को पूरा 45 पे भी आया. 45 भी डिविजिबल बाय 5 है एंड 3 है, ठीक है? बस 3 जगह पे आया मेरे को. 30 पे भी आया, तो 30 ऑल्सो इट्स कॉमन. आर यू गेटिंग द थिंग व्हाट वी हैव डिड? किसी को कुछ भी डाउट? इजी था ना? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना? इजी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. डिफिकल्टी बढ़ेगी मतलब ये आपको, दिस इज गुड. हाँ, दिस इज, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दोज जिनको ये इजी जा रहा है. मतलब आपकी ग्रास्पिंग पावर, आई रियली वांट हैट्स ऑफ टू योर एक्सेप्टिंग पावर. मतलब आपकी जो भी ग्रास्पिंग पावर हम कह सकते हैं, इट इज़ रियली गुड. आपको ये चीज़ें समझ रही है, आसानी से समझ रही है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन द फर्स्ट वे ओनली. तो इट इज़ रियली गुड. अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है, आप फॉर लूप से डील कर रहे हो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो इट्स वेरी गुड. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. इसमें सच्चे में किसको कुछ भी डाउट नहीं है ना? तो ऐसा नहीं हो कि 10 मतलब 15 जनों को समझ रहा हो, देयर इज सिंगल पर्सन लेफ्ट
ऐसा अगर कोई भी रहता है ना पीछे तो बोलो यार, मतलब ऐसा अब किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको हमको साथ लेके चलना है। किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो पूछो भाई, पूछो, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लिस्ट? या सो अरे यार टाइम आउट, 11 बज गए यार। एक्सटेंड यार, एक जन तो कह देता है एक्सटेंड, बट सारे 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 जन की अंदर से निकलना चाहिए ना वो कि एक्सटेंड करो। लेट्स सपोज कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? नहीं, अगर एक भी जन को प्रॉब्लम है तो वी नॉट गोना डू दैट। आई गेस हम टोटल 14 लोग हैं, 14-15। अगर मेरे को कमेंट में यहाँ पर एक जन तो मेरे को कंफर्म है जो कि नहीं बोलेगा, वो है मृदुला। राइट मृदुला? एक्सटेंड करना है? देखो उसने उसने करेंगे, कर लो, ऐसा नहीं बोला, कर सकते हैं। अभी रात के 11 बजे खा पे जाऊंगा भाई मैं। छोड़ दिया यार मैंने मैच। अभी मैं डाइटिंग पे हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मोटा हो गया, डाइटिंग कर रहा हूँ, कल से ही शुरू किया है। एक बार मेरे को अगर सब जन मैसेज में यस लिख दो, अगर किसी को सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है तो नो लिखो। एक्सटेंड करना है या नहीं करना है? इफ़ यस टाइप यस, इफ़ नो प्लीज़ टाइप नो। जिसको भी नो है वो सीरियसली नो लिखो, ज़बरदस्ती नहीं यस लिखने की। शिट मत बोल यार, सब जन अपने जितने वैल्यू नहीं रहते ना। हाँ तो गाइस वी विल, हाँ जीवन बाकी है, या कैन अंडरस्टैंड। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। हम थोड़े और फॉर लूप पे क्वेश्चन देखेंगे एडवांस वाले, जैसे कि नंबर्स में अगर कोई नंबर है 5, 6, 7, तो कितने नंबर से उसको कैसे काउंट करना, कितने डिजिट है उसको कैसे काउंट करना, आप ट्राई कर सकते हो इसको। या फिर टोटल डिजिट्स की सम निकालनी, ठीक है। उसके बाद सर्टन पॉइंट पर ब्रेक लगाना, इस वाले पॉइंट पर हमको ब्रेक लगाना है, इस वाले पॉइंट पर हमको कंटिन्यू करना है, मतलब स्किप करना है वो आइट्रेशन। मतलब हम बेसिकली कंटिन्यू ब्रेक कीवर्ड के बारे में जानेंगे, थोड़े से और फॉर लूप्स पर क्वेश्चन करेंगे, एंड विल डू दी वाइल लूप एंड डुअल लूप। वो कल का टॉपिक रहेगा, कल नहीं सॉरी परसों का। टिल देन एंजॉय, stay happy, see you day after tomorrow. Thank you so much guys, thank you। बोलना मी आज लिंक नवीन जो पण रिस्पॉन्सिबल आहे, लीना ही की गेली। आई विल टेल हर, वो शेयर कर देगी, उसको मैं बोलूँगा कि उसी लिंक पे शेयर करना है, यानी शी विल डू इट राइट नाउ। हाँ विल ऐसा, हाँ इस बार ये मृदुला एक बार लीना से पूछ लेना ना कि क्या करना है इसका। हाँ ग्रुप पर अपडेट डाल देंगे मृदुला कहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। एनी अदर डाउट देन दिस? हाँ करण, हाँ सी प्रोग्रामिंग से कहा। Yes, for sure.